ธังสารนังคัจฉามิ ณ บัดนี้ ณ บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้พร้อมใจกัน ได้พร้อมใจกัน เดินทางมาถึงพระวิหารเชตวัน เดินทางมาถึงพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี เขตพระนครสาวัตถี เพื่อกราบนมัสการรอยพระบาท เพื่อกราบนมัสการรอยพระบาท ที่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ ที่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ และทรงแสดงพระธรรม และทรงแสดงพระธรรม ข้าพเจ้าขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง ขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรม เพื่อศึกษาพระธรรม อบรมปัญญา อบรมปัญญา อันเป็นเหตุให้ประพฤติปฏิบัติ อันเป็นเหตุให้ประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลาละคลายกิเลส ขัดเกลาละคลายกิเลส จนกว่ากิเลสทั้งปวงจะดับหมดสิ้นไป จนกว่ากิเลสทั้งปวงจะดับหมดสิ้นไป हम सब यहाँ इस वक्त पर एक साथ मन से जतवन बिहार आए हैं। यह बिहार अनाथ पिंडक की तरफ से उपहार था, जो श्रावस्ती के महान उपकारक थे। हम यहाँ पर भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को नमस्कार करने आए हैं। यहाँ एक समय पर सम्मा संबुद्ध भगवान यहाँ पर रहे हैं और धम्म सिखाया है। हम सब भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं, आर्या संघा की शरण में जाते हैं। धम्म शिक्षा और अपने समझ को बढ़ाने के लिए जो कारण बनता है, जीवन के सच को समझने के लिए और क्लेशा को कम करने के लिए और तब तक जब तक कि क्लेशा खत्म ना हो जाए न होता है। ค่ะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลที่มีผู้ที่ได้เดินทางมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่ออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อได้รู้จักพระคุณที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสังสารวัฏ ये दिन उस दिन जैसे उस समय जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, जैसे उस वक्त लोग गए थे सम्मा संबुद्ध को मिलने। ये नहीं कि सिर्फ देखने पर समझने, जो धम्म उन्होंने सिखाना था और समझने के लिए พระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อให้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกซึ่งถ้าไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะคะจะคิดไม่ถึงเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร और वो सिखाया उन्होंने वो चीज़ जो अगर हम कभी नहीं सुने हम नहीं समझेंगे कि ये सब सच है। और जो उनका प्रवचित हुआ, जो उन्होंने जाना, अगर ये शब्दों सुनना हम जानेंगे भी नहीं ये कि ये सच है। ได้ยินแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าใจสักคำว่าตรัสรู้อะไรและธรรมะคืออะไร शायद सुने कि बुद्ध भगवान का प्रवचित हुआ, पर
अगर ना सुनना कि क्या किस चीज़ का प्रवृत्ति हुआ, किस सच का प्रवृत्ति हुआ, उनका धम नहीं सुने तो नहीं जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझा। ขณะนี้ถึงเวลาที่ยากที่จะมีได้ในสังสารวัฏ ये एक वक्त है, वो वक्त जो संसार अपने जन्म बहुत सारे जितने भी जन्म है बहुत कम मिलता है चांस ये सच सुनने के लिए। ये एक उस वक्त है। แต่ละคำต้องเคารพสูงสุดในความจริงในสัจจะ और हर शब्द जो हम सुनना मतलब सुन किस शब्द जो शब्द उनका थे मतलब हो गया उनको रिस्पेक्टफुल से सुनना कि उन्होंने क्या कहा, उनका मतलब क्या था। ไม่ใช่ทุกคำของพระองค์ให้เชื่อแต่ให้ฟังไตรตรองคำนั้นถูกหรือผิดจริงหรือไม่จริง और बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया इसलिए नहीं कि हम माने सुन के मानने पर समझने के लिए विचार करने के लिए कि सच है या नहीं जो उन्होंने सिखाया। นี่เป็นการเริ่มต้นการเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เราได้ฟังทุกคำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง और ये है शुरुआत हमको समझना उनका सारे गुण और रिस्पेक्ट क्या मतलब क्या है, उनका सारे गुण क्या है और उन्होंने किस लिए हमको सिखाया कि हम भी ये सब कुछ समझे, इसलिए सिखाया। ไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ฟังด้วยความเคารพ सिर्फ मानने के लिए नहीं पर सुन के समझना, कोशिश करना समझने। ถ้าฟังไม่เข้าใจไม่ไตร่ตรองจะเป็นการเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า अगर सुनकर ना समझे ना कोशिश करे कि विचार करे समझने के लिए तो फ़ायदा क्या है सुनने को। เพราะฉะนั้นความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นเข้าใจคำที่ได้ยินจึงจะเป็นการเคารพ तो उनका रिस्पेक्ट यही है, मतलब यही है रिस्पेक्ट, सुन के समझना। พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีทุกขณะไม่ว่าในกาลไหนในอดีตการนานแสนนานมาแล้วและในขณะนี้และต่อไปความจริงก็เปลี่ยนไม่ได้เลย और उन्होंने वही सिखाया वो सच जो हर वक्त पे है, जो सच इस वक्त पे है जो लाखों साल पहले और लाखों साल के बाद यही सच रहेगा, वही सच उन्होंने सिखाया। การฟังธรรมะนะคะได้ยินหลายคำแต่ไม่มีการสนทนาที่จะให้เข้าใจจริงๆจะไม่รู้เลยค่ะว่าเข้าใจคำนั้นหรือจำคำนั้น अगर हम धम सुने पर चांस नहीं मिला डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए, हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा समझ सही है कि नहीं। เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องไม่เผลอที่จะคิดว่าเข้าใจแล้ว तो जल्द मत होना, ये मत सोचने सुन के ये मत सोचना कि हमको समझ आ लिया, इतना आसान नहीं है। ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้ไม่สามารถที่จะเป็นชื่อของใครได้ทั้งสิ้นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียว ये शब्द सुन के अरहत सम्मा संबुद्ध ये हमको समझना चाहिए कि ये नाम किसी को भी नहीं मिलता, सिर्फ उसी एक व्यक्ति को मिलता है जिनका गुण इतना उस लेवल पे है। ได้ยินคำว่าอรหันต์นะคะแล้วก็ได้ยินชื่อมากมายเช่นท่านพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์แต่ก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า और हम अगर सुनने धम्मा मतलब हो गया हमने बहुत सारे अरहत के बारे में सुनना जैसे सारीपुत्ता महामोगलाना, पर जितना भी उनका समझ थे वो इतना नहीं जितना बुद्ध भगवान के थे। ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคำต้องเข้าใจความจริงที่พระองค์ตรัสและก็กำลังมีในขณะนี้
แล้วก็พิสูจน์ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่า तो हर शब्द हम सुने हमको समझना है कि उसका मतलब क्या है, क्या समझना है और बुद्ध भगवान ने ये शब्द क्यों यूज़ किया। ขณะนี้นะคะมีหลายคนมากเหมือนกันไหมคิดอย่างเดียวกันหรือเปล่า इस वक्त पे बहुत सारे लोग हैं, हर लोग बहुत तरह के लोग हैं, सबका सोच एक ही है या अलग है। ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าใครคิดถูกใครคิดผิดใครคิดด้วยความเข้าใจหรือใครคิดด้วยความไม่รู้ก็จะมีได้นะคะต่อเมื่อมีการสนทนาธรรม तो अगर जानना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग किसके पास अंडरस्टैंडिंग है, किसको समझ है, किसको गलत समझ है, सिर्फ एक तरीका है डिस्कशन, चर्चा करना। คนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยไม่รู้จะสนทนากันเรื่องธรรมะอะไร और अगर कोई कई व्यक्ति कभी धम्म नहीं सुनना तो धम्म चर्चा कर सकते हैं, कभी नहीं, เพราะไม่รู้จริงๆค่ะว่าธรรมะคืออะไร क्योंकि वो नहीं जानते कि धम्मा क्या है सच में। เดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าคืออะไรตอบได้ไหม तो अगर हम उनसे पूछे इस वक्त पे धम्मा है, सच में है, क्या है, वो देंगे, सही जवाब दे सकते हैं। ด้วยเหตุนี้นะคะการสนทนาก็เป็นการให้ทุกคนเนี่ยได้คิดพิจารณาด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อใครแต่ต้องเป็นความจริงที่ทุกคนเห็นว่าถูกต้อง तो मतलब यही हुआ सुनने वाले का उनका ड्यूटी है सुन के खुद अपना अलग अलग समझ और विचार करना कि हम समझते हैं कि नहीं। ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลานะคะที่เราจะเริ่มเข้าใจถ้ามีข้อสงสัยก็จะได้สนทนากันเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่า तो अगर आप ये समझते कि एक ये चांस है समझने के लिए और अपना कोई डाउट्स है मतलब क्लियर करने के लिए यही चांस है और आप पूछ सकते हैं और हम शुरू कर सकते हैं डिस्कशन। คำตอบที่เป็นการเข้าใจคำจริงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้แล้ว और जब सवाल का जवाब मिलता है अगर वो जवाब सच की बात है और सुनने वाले को सच की समझ बढ़ाता है, जो भी बोलता है वो आता है बुद्ध भगवान से ही। ค่ะเริ่มเป็นคนตรงดีไหมคะเป็นคนตรง और शुरू एक सच्चा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। สัจจะเป็นความจริงถ้าไม่ตรงไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ अगर सच्चा नहीं है, हम सच नहीं है तो सच नहीं जान सकते। ค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสที่น้อยมากวันนี้ก็คงจะไม่นานนะคะแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าใจสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังให้รู้จริงๆว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะต้องไม่ลืมเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าอย่างไรธรรมะลึกซึ้ง तो ये चांस है आप सबको मिला है पूछने के लिए, समझने के लिए, और ये मत भूलना कि जब बुद्ध भगवान उनका प्रवचित हुआ उन्होंने क्या कहा सच के बारे। คนที่จะตรัสความลึกซึ้งของธรรมะได้ผู้นั้นต้องลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของความจริงได้ उन्होंने ये कहा कि धम्म बहुत गहरा है, बहुत जटिल है, मुश्किल है समझना। तो आचार्य ये कह रही है वही इंसान जिनका समझ है वो समझ सकते हैं ये सच, वही समझेंगे। เพราะฉะนั้นไม่ประมาทพระปัญญาคุณและพระธรรมที่ทรงแสดงแม้คำเดียว तो ये समझ के खुद अपने आप हम ये समझे
समझेंगे कि हर शब्द वैसे सुन के ना विचार करना से आगे जाना गलत है। ठीक से समझने की कोशिश करना और विचार करना हर शब्द को। บางคนก็ใจร้อนนะคะอยากรู้ธรรมะพูดเร็วๆเรื่องธรรมะมากๆจะได้เข้าใจแต่ว่าตรงไหมในเมื่อไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ก่อน तो अपने एक्सपीरियंस में या कई आपने देखे कई लोग जब सुनने के टाइम पे चाहते हैं बहुत कुछ सुनना, बहुत जल्द है, बहुत कुछ चाहते हैं और सुने पर रुकते नहीं, समझने के लिए कोशिश नहीं करते हर एक वक्त पे एक शब्द को कि अगर एक शब्द गलत हुआ फिर बाकी का शब्द गलत हो जाएगा। สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้กำลังมีหรือเปล่าเริ่มต้นนะคะไม่ต้องเชื่อใครสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้กำลังมีหรือเปล่า तो ये जो अचानक कह रही है ध्यान से सुन के विचार करना ये सवाल कि जो सच वास्तविकता जो इस वक्त पे है सच में ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีสิ่งที่มีจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไร और अगर ये सच ना हो इस वक्त पे वो सच नहीं है तो क्या है जो बुद्ध भगवान ने प्रवचित किया किस सच का และใครรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้บ้าง और कौन हम में से कौन जानते हैं जो सच इस वक्त पे है कौन समझता है ถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆจะไปพูดเรื่องอื่นจะรู้ได้เข้าใจได้หรือเปล่า और अगर सच जो इस वक्त पे है इसको ना समझे फिर हम दूसरे चीज़ जो नहीं है उसके बारे सोचेंगे और นี่คือผู้ที่เคารพพระธรรมสูงสุดเพราะรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว और अगर ये समझा तो वो व्यक्ति समझेंगे कि बुद्ध भगवान कौन थे और रिस्पेक्ट करेंगे उस व्यक्ति को और उनके हर शब्द को रिस्पेक्ट करेंगे ก่อนฟังนะคะคิดว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งไหม सुनने से पहले जैसे आज सुनने से पहले मन में कभी आया कि ये हर शब्द बुद्ध भगवान का गहरा है जटिल है कभी सुना और कभी सोचा इस डायरेक्शन में सोचा เริ่มเป็นผู้ตรงต่อความจริงนะคะเมื่อตอบจะตอบไปยังไงคะ तो अचानक पूछ रही है आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं अगर ये शब्द जो आज अचानक ने इस वक्त तक बोला अगर आपने आके ये सोचा कि बुद्ध भगवान का दम सुनना है उसके बारे मन में कभी आया कि जो हम सुनने वाले आए हैं सुनने आए हैं वो हर सच वो सच बहुत गहरा है बहुत जटिल है बहुत कठिन है कभी सुनना मन में आया इससे पहले จะรู้เรื่องธรรมะที่เป็นสภาพที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะก็ต่อเมื่อเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ลึกซึ้งบ้าง और समझना कि ये सब सच गहरा है जटिल है तो अपने सोच से नहीं होगा सोचने से नहीं होगा जब हम सिर्फ जब हम समझेंगे कि इस वक्त का सच क्या है जब वो समझे फिर हमको समझ आएगा कि ये है मतलब ขอคำตอบค่ะ गहरा อะไรลึกซึ้งมีไหมเดี๋ยวนี้ तो ये अचानक पूछ रही है आपसे कि इस वक्त पे है कोई सच जो गहरा है जो जटिल है कोई सच है कि नहीं इस वक्त पे ยกมือค่ะถ้าจะตอบ It's a question for them. Check.
सर ये वाली बात पूछ रहे हैं, इस वक्त पे ऐसा कुछ सच है ขอโท जो ษ बहुत นะคะ गहरा है और ขอ बहुत เป็น जटिल ชาว है और जो आपको พี่น้อง समझ में ชาว नहीं อิ आ นเดีย रहा है। ค่ะ คนไทยตอบได้ ไปกรุงเทพก็ตอบได้ มีเยอะแยะฟังธรรมะบ่อยๆ แต่โอกาส हाँ, ये पल का मतलब Sir, he is asking, this moment is real and it is truth that it is real, but he is not able to understand. How can he understand this moment, sir? ก็เป็นคำถามที่อาจารย์ถามเขาแต่ก็ถามตอบมาว่าจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงตอนนี้ได้ยังไง ค่ะ คนที่จะเข้าใจต้องคิดเอง ถ้าไม่คิดเป็นความเข้าใจของคนอื่นที่บอก เพราะ देखो ฉะนั้นต้องรู้ว่าจะเข้าใจนะคะ ก็ต้องเมื่อเริ่มคิด तो ये है बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपने पूछा और आप चाहते हैं, ये हमारा आदत है कि हम सिर्फ सवाल का जवाब चाहते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन, पर आचार्य ये कह रही है आप खुद विचार करना है, ये आप खुद अपने आप से पूछना है और समझने की कोशिश करना है, जवाब देना अपने आप को। ถ้าไม่มีคำถามจะคิดอะไรคะ और अगर सवाल नहीं है, ये जैसे आपने पूछा, फिर दिन में क्या सोचे, क्या सोचते हैं? แต่มีคำตอบจะได้รู้ว่าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร นั่นคือคำตอบ पर जो सवाल आपने पूछा जवाब है और बुद्ध भगवान ने जो कहा वो आचार्य बताएंगे। เวลาที่มีคนมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ที่พระวิหารเชตวันนี้ พระองค์ตรัสถาม और ऐसे ही था उस वक्त, उस जमाने में जब लोग थे बुद्ध भगवान के सामने, वो भी आए थे जैसे हम हैं, वो भी पूछते थे बुद्ध भगवान से और बुद्ध भगवान आंसर देते थे। เพื่อเขาจะได้คิดไตร่ตรองนะคะ แล้วก็เข้าใจถูกแค่ไหนหรือไม่เข้าใจก็จะได้ฟังคำที่พระองค์ตรัส और उनका जवाब भी उसी तरह की, वो पूछने वाले को खुद अपना समझ हो, विचार करे, कोशिश समझने की कोशिश करे। ขอทวนคำตอบค่ะ เมื่อกี้นี้ตอบว่ายังไงคะ तो दोबारा रिस्पॉन्स कर सकते हैं आचार्य का सवाल कि इस वक्त पे मकी कमथाम आचार्य थोन माइडा में खब ค่ะ เดี๋ยวนี้มีอะไร इस वक्त पे क्या है जो सच है? जो हमें दिखाई दे रहा है यही सच है। ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั่นคือความจริง หมายความว่ามีเห็นจริงๆ ใช่ไหมคะ मतलब देखना है ना, एक सच है, हो रहा है, और ค่ะ เขาเห็น หรือไม่ใช่เขาที่เห็น पर सच क्या है? हम देख रहे हैं या सिर्फ देख रहा है? जो हम देख रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं वो सच है आपके हिसाब से? जो हम देख रहे हैं और देखना है, अगर देखना नहीं है तो कुछ दिखाई देगा नहीं, तो देखना भी है ना। है। अभी अचानक पूछ रहे थे देखने के बारे, तो देखना है इसलिए आपको मन में आया कि हम देख रहे हैं, क्योंकि देखना हो रहा है। जी तो अब अचानक ये पूछ रहे हैं आपसे कि सच में आप देख रहे हैं या देखना हो रहा है? देखना हो रहा है। आप ये समझ मी हेन खबไม่ใช่เรา ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมคะ और आपको ये समझ है कि ये देखना हो रहा है और ये देखना अगर नहीं उठा, देखना होगा? ये नहीं। देखना उठा है ना, जी और देखना इसलिए हुआ कि हो रहा है क्योंकि उठा है। जी เขาทำให้เห็นเกิดได้ไหม और उठा, ये उठा है, आपने उठाया, आपने बनाया या क्या? नहीं,
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เห็นเกิดได้ไหม बुद्ध भगवान कर सकते हैं, देखने को उठा सकते हैं, बना सकते हैं. बुद्ध भगवान जी बना सकते हैं. जी मतलब जैसे आप देख रहे हैं, आप नहीं बना सकते हैं, पर बुद्ध भगवान बना सकते हैं देखना. उनके लिए भी ऐसे ही ना, देखना है पर कोई भी नहीं बनाया. बना कोई ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เห็นเกิดไม่ได้ล่ะคะ और इसका कारण क्या है? क्यों आप नहीं बना सकते हैं देखने को, या बुद्ध भगवान भी नहीं बना सकते हैं? इसका कारण क्या है? जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक देखेंगे नहीं. सोचना भी एक इसी में है. जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उसको पहले सोचना है. पहले सोचना या देखने के बाद सोचना है जो दिखाई दिया? जो दिखाई दे रहा है हाँ. वो तो सोचे हैं, और जो देखने के बाद जो दिख रहा है, देखने के बाद जो सोच रहे हैं वो सत्य नहीं है. हाँ, हट गया वो. तो सवाल ये है कि अगर हम नहीं बना सकते हैं, बुद्ध भगवान नहीं बना सकते हैं देखने को, इसका कारण क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं. ก็ที่ถามก็เพราะอยากจะทราบอะไรทำให้เห็นเกิดถ้าไม่ใช่เรา ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหมคะ अगर आंख नहीं है तो देखना होगा? नहीं. เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาถึงแม้ว่าจะมีตาจะเห็นไหม और अगर आंख है पर वो नहीं है जो आंख का कांटेक्ट करता है, मतलब एक रंग आंख को कांटेक्ट करता है, तो देखना होगा? नहीं. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่ทำให้แต่ละอย่างเกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสด้วยพระองค์เองว่าสิ่งที่มีจริงคือธรรมะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครเลยนะคะแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไร तो बुद्ध भगवान ने सब कुछ जान लिया, हर सच को जान लिया. जैसे देखना कि अलग अलग कंडीशन से उठता है, उसका क्या कारण, उसका क्या कंडीशन है, और सब अलग अलग धम अलग अलग कंडीशन से उठा है. और ये सब बुद्ध भगवान ने का प्रवचित हुआ और हमको सिखाया समझने के लिए. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงจึงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะให้พระองค์เปลี่ยนตรัสเป็นอย่างอื่นได้ไหม और ये कहा कि ये सब धम जो उठा है अपने कंडीशन से, हर धम अनत्ता है. हर धम अनत्ता. अनंत. ทุกสิ่งทุกอย่างมีเพราะเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏ और हर धम उठ के है और भंग हो जाता है. ถ้าเข้าใจนะคะขณะนี้ทุกอย่างที่มีกำลังดับ और अगर समझे, यही समझेंगे कि इस वक्त यही हो रहा है, हर धम उठ के भंग हो रहा है, अलग अलग धम उठ के भंग हो रहा है, वापस कभी नहीं आता. जी. ไม่ใช่มีแต่เห็นนะคะได้ยินก็มีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีได้ยินแล้วก็ดับ सिर्फ देखना नहीं है, सुनना भी है, और इसी तरह सुनना भी उठ के सुन के खत्म हो जाना. खत्म हो जाता है. ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะดับการยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ और अगर बुद्ध भगवान ने ये नहीं समझा, जो हर सच को पूरा समझा, तो ये जो आदत है जैसे हम लोग के पास कि हम सोचते हैं कि हम है जो देखते हैं, हम है जो सुनते हैं, ये कभी नहीं ख़त्म हो जाता. जी. มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายบ้างไหมคะ है कोई व्यक्ति जो जिसका जन्म हुआ और ना मरे? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है. เทวดาเกิดแล้วต้องตายไหม देवता के जन्म है, मृत्यु भी है उनका भी. मृत्यु भी है. พรหมเกิดแล้วเป็นพรหมต้องตายไหม ब्रह्म लोका पे भी व्यक्ति, वो भी उनका भी जन्म होते
और उनका भी भंग होना है। हाँ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมแล้วพระองค์ต้องตายไหม और बुद्ध भगवान खुद उनका जीवित हुआ, उनका प्रवचित हुआ और वो भी भंग हुआ। उनका भी धम जो है वो भंग हुआ, धम भंग हुआ, उनका जीवन भी खत्म, जीवन भी भंग हुआ, खत्म हुआ। हाँ। เกิดแล้วยังไม่ตายระหว่างที่ยังไม่ตายมีอะไรบ้าง और जब जन्म के बाद जीवित है पर मरने से पहले क्या क्या होता है जीवन में? एक बार फिर से। जन्म के बाद जीवन है जी और मरने से पहले क्या क्या होता है? जन्म के बाद और मरने से पहले क्या क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना और बिना नाम के पैदा होना, नाम के साथ मर जाना। Sir, he's saying, sir, सांस लेना और छोड़ना, breathing in and breathing out, and born without the name, and after then the death is there. เขาตอบว่าเกิดมาแล้วก็หายใจเข้าออก แล้วก็เกิดมาไม่มีนามไม่มีชื่อ แล้วก็หลังจากนั้นก็ตายไป ค่ะทุกอย่างที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกตายใช่ไหมคะ और असल मतलब मरने का यही है ना कि जो भी उठा भंग हुआ वापस नहीं आता। नहीं आता। ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ ทุกอย่างที่เกิดทันทีที่เกิดก็ดับ เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับเป็นขณิกะมรณะมีความตาย3อย่างแต่เรามักจะไม่รู้เรื่องขณิกะมรณะที่กำลังเกิดตายเดี๋ยวนี้ हर दम जो उठता है ये कह सकते हैं उसका जन्म होता है और जब भंग होता है मर जाता है। ये कहते हैं खनिका मरना। ये जब हर दम का मरना भंग होना ये निश्चित है। हाँ खनिका मरना एक तरह का मरना 3 तरह का होता है और ये है जो हम हर वक्त हो रहा है ये जन्म और मरण हर वक्त हो रहा है हर दम का। जी เดี๋ยวนี้กำลังตายหรือเปล่าคะ तो मतलब इस वक्त पे मरण हो रहा है। जी ค่ะไม่มีใครเลยมีแต่ธรรมะที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ और हम नहीं ना सिर्फ अलग अलग धम्मा जी का जीवित हो रहा है और जन्म हो रहा है और मर भी रहा है। हम नहीं ค่ะเพราะฉะนั้นจะถึงวันหนึ่งซึ่งเราใช้คำว่าตายหมายความว่าจะเป็นคนนั้นอีกต่อไปไม่ได้เลย और एक दिन आएगा जो हम सब समझते हैं कि मरना क्या है जो सब लोग समझते हैं वो दिन आएगा और उसका ये है कि हम इस व्यक्ति नहीं रहेंगे इस व्यक्ति नहीं रहेंगे के रूप से नहीं रहेंगे। हाँ। แต่บังคับไม่ให้ตายแล้วเกิดไม่ได้ เมื่อสิ่งหนึ่งตายแล้วอย่างอื่นไม่ใช่สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้สิ่งต่อไปเกิดขึ้นและดับไปหยุดยั้งไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ पर कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता कि जो उठा वो जन्म किया और मरण का कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता है। नहीं। ये भी नहीं कंट्रोल कर सकता है कि एक जन्म हुआ और मरण हुआ उसके बाद दूसरा धम उठा जन्म किया मरण और कंटिन्यू ऐसे बार बार एक धम के बाद दूसरा धम जन्म मरण जी กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะดับแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้ขณะต่อไปเกิดจนกว่าขณะที่ตายไม่เป็นบุคคลนี้ต่อไปแต่หลังจากที่ตายก็เกิดทันทีเหมือนเดี๋ยวนี้ और जैसे इस वक्त पे हो रहा है जन्म मरण तब तक जब हम जो सब को पता है जब मरने के टाइम जब ये व्यक्ति जैसे हम का आखिरी सांस आखिरी चित
पर वो भी उस वक्त के बाद भी कोई भी नहीं रोक सकता, उसके बाद एक और जन्म होता है तुरंत। जी। กลัวตายไหมคะ डरते हो मरने से? नहीं। मैं क्यों? อยากตายไหมคะ मरना चाहते हो? जी। जागता है। อยากตายกำลัง ये ตาย सत्य है, मुझे मौत होनी है, सत्य है, इससे क्या डरना। नहीं, पर चाहते हो, ये है सवाल दूसरा। चाहते हैं मरना? नहीं चाहते तब भी मरना पड़ेगा, तो नहीं, चाहने पर- से मरना नहीं, अच्छा है। नहीं, वो तो पहले सवाल, मरना तो है, जी। पर चाहते और मरना नहीं कोई डरते, नहीं चाहता, और नहीं डरते। डरता नहीं हूँ, लेकिन सबको डर लगता है। हाँ, तो जब आप कहते हैं नहीं डरते, मतलब हो गया सच में डरते हो। सच और यही है। ठीक है। तो मरना नहीं चाहते ना? जी। हाँ, मैं आता है। ค่ะเพราะไม่รู้จักตาย हम्म, ซึ่งกำลังตาย हाँ। จะอยากหรือไม่อยากเดี๋ยวนี้เห็นก็ตาย ได้ยินก็ตาย और हम सब लोग डरते हैं क्योंकि समझते नहीं कि मरना क्या है। जी। क्योंकि सच ये है कि मरने के हो बाद रहा फिर है। जन्म होना है। नहीं, मरना इस वक्त हो रहा है, अभी फिर दम हो रहा है होगा। हर दम। जी, हर दम हो देखना रहा है। उठ के भंग हो रहा है, ये मतलब जन्म मरण, जी, सुनना ये तो जन्म लगातार मरण चलेगा। हो रहा है। हम अगर ये समझे तो मरण आसान हो जाएगा। ตายหมายความว่าไม่เป็นคนนี้ที่เห็น ไม่เป็นคนนี้ที่ได้ยิน ถูกต้องไหมคะ और जो आम लोग कहते हैं मरना, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति नहीं देखेगा, ये व्यक्ति नहीं सुनेगा, ये व्यक्ति नहीं है जो सुनेगा, जो देखेगा, जो सोचेगा। यही मतलब है। กำลังหลับเห็นอะไรหรือเปล่า सोने के टाइम पे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। ได้ยินอะไรหรือเปล่า सुनाई दे रहा है? नहीं। อยากหลับใช่ไหม पर सोना चाहते हो ना? जी। หมายความว่าไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยิน ไม่อยากคิดอยากหลับใช่ไหม मतलब उस वक्त पे आप देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सोना चाहते हैं। नहीं नहीं, तीनों चीज है। जब सो जाएंगे तो ना दिखाई देगा, हाँ, ना तो सुनाई देगा। मतलब हो गया, जब सोना चाहते हैं मतलब ये हुआ कि उस वक्त पे आप सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, सिर्फ सोना चाहते हैं। जी। हाँ,ครับ ค่ะตื่นขึ้นนะคะ ก็เห็นอีกได้ยินอีกได้กลิ่นอีกแล้วก็หลับไม่รู้อะไรเหมือนเดิม ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ พี่น้องมีกี่คนก็ไม่รู้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง और पर जब सुबह में उठे फिर चले देखना सुनना वगैरह, और तब तक जब रात आए सोए, और सोने के टाइम पे कुछ भी नहीं जानते कि खुद कौन है, आपके परिवार में कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, बेटे कौन है, बीवी कौन है, कुछ भी नहीं कुछ पता भी नहीं नहीं पता। เพราะฉะนั้นไม่เห็นดีไหมไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่น ไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกเลยพักผ่อนดีไหม तो ये मतलब ये अच्छा नहीं हुआ कि हाँ, ये सब ख़त्म हो जाए, देखना सुनना सोचना, क्योंकि अगर देखना नहीं हुआ, सुनना नहीं है तो कोई फिक्र नहीं। कोई फिक्र नहीं। ครับ ครับคือ คือว่าถ้าไม่มีเห็นไม่มีอะไรก็ดีครับ ดีนะฮะไม่ต้องเกิดอีกเลยดีไหม तो मतलब ना जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ, ये अच्छा होगा, है कि नहीं? ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये हम सोचना होगा, इसके लिए हाँ, इसको हम मानते नहीं। पर अगर उस हिसाब से आप बोले कि जब आप ये देख के कि देखना सुनना सोचना ये सब बेकार की चीज़ है, यही सत्य है। हाँ, अगर ये सच है और ये समझे, मतलब हो गया आप वही सोचेंगे कि अगर जन्म ख़त्म हो जाएगा, जी। ये बार बार आके फिर देखना सुनना वगैरह वगैरह, अगर ये समझे तो आप यही सोचेंगे कि जन्म ना हो अच्छा है कि नहीं? जी। पर इस वक्त पे ये नहीं लगता आपको, क्योंकि इस वक्त
चाहते हैं कि देखना सुनना, और मरने के बाद चाहते हैं कि जन्म दोबारा हो, अच्छा जगह पे हो, अच्छा रूप पे हो. जी. ฮะครับผมก็อธิบายตามที่อาจารย์เมื่อกี้ตรัสว่าถ้าเข้าใจว่าเห็นเป็นโทษได้ยินเป็นโทษเพราะฉะนั้นไม่เกิดไม่เกิดดีกว่าใช่ไม่แกก็บอกว่าต้องคิดดูแล้วเวลาอธิบายให้แกฟังว่าแกก็บอกว่าใช่แต่ว่าก็เลยบอกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่รู้สึกอย่างนั้นจริงใช่ไหมตอนนี้ยังอยากเห็นอยากได้ยินใช่ไหมแล้วถ้าตายไปก็ยังอยากจะเกิดใหม่ใช่ไหมเขาบอกใช่ค่ะเพราะว่ายังไม่รู้จริงๆในสิ่งที่เกิดแล้วดับเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่ง और ये इसलिए है आप सच में चाहते हैं सुनना देखना दोबारा जन्म होना अपना इसलिए क्योंकि आप इस वक्त का सच नहीं समझे. जी. เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี3ระดับ और बुद्ध भगवान का धम्म 3 लेवल्स का है. तीन लेवल्स का क्या बोलेंगे? कौन सा लेवल्स तरह का नहीं, 3 स्तर का है. कौन अभी बता दो.ครับอธิบายแล้วมีสามระดับ ค่ะเดี๋ยวนี้เพียงฟังว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับได้ยินเห็นไหมคะมีเสียงและไม่มีเสียงได้ยินและมีไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินก็เกิดดับแต่ขณะนั้นเป็นเรา इस वक्त तो जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे देखने सुनने के बारे की ये सब उठ के भंग हो रहा है हम सुन रहे हैं जितना भी समझ है पर उस लेवल पे समझ है जो बहुत कम है क्योंकि हम सुन के हमको लगता है कि हम है जो सुन रहे हैं हम है जो देख रहे हैं यही ना एक लेवल का है. ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเพิ่งฟังว่าเห็นเกิดแล้วดับได้ยินเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเพิ่งฟังแต่ยังไม่ประจักษ์ขณะที่เพียงหนึ่งเกิดแล้วดับ इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं सुनना कि ये सब हो रहा है ये सच ऐसा ही है पर देखा नहीं कि ऐसा हो रहा है. เพราะฉะนั้นความรู้ขั้นนี้ไม่พอนะคะแต่ก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า मतलब हो गया ये लेवल जितना भी हमारा है ये काफ़ी नहीं है और सुनना पड़ेगा जब तक हमारे लेवल उस लेवल तब होगा जब हम सच को देखें เป็นพื้นฐานที่จะเริ่มเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่ง और पर ये है बेसिस ये है शुरुआत उससे है कि हम शुरू करते हैं समझना कि ये सब धम्मा है हम नहीं है अलग अलग धम्मा है हम कहीं भी नहीं है हम कहीं भी ไม่ใช่เราที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นได้ยินต่างขณะ ये नहीं जैसे हम सोचे आए हैं कि एक दिन में हम एक वक्त पे देखते हैं एक वक्त पे सोचते हैं एक वक्त पे सुनाई देते हैं ये करते हैं वो करते हैं हम है करते हैं अलग अलग वक्त पे पर सच ये है कि हम नहीं है सिर्फ अलग अलग धम काम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं. जी มีความมั่นคงไหมคะว่าไม่มีเรา ये इतना समझ के अपना अंडरस्टैंडिंग उतना सख्त है कि ये सच है सख्त है अपना अंडरस्टैंडिंग सख्त नहीं है ना सुनाई दिया थोड़ा समझ आए पर इतना सख्त नहीं हैยังไม่มั่นคง นี่เป็นความจริงที่ถูกต้องนะคะต้องรู้จักความจริงไม่ใช่หลงคิดว่าเรารู้แล้วเรามั่นคงแล้วเราละความเป็นตัวตนแล้วนั่นผิด और ये सही है जो आपने बोला ये क्योंकि कई लोग सोचते हैं सुन के समझ लिया मतलब
हो हो ज्ञान। गया, ये होता हाँ, नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। जी। जितना है अब वही पता है वही कितना है जी। अपना समझ।ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นอธิษฐานบารมี ความมั่นคงว่าเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เรา แต่ละหนึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริง มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับ और ये है जो आप शायद सुनना अधिधान पारमिता। अधिधान पारमिता मतलब आपका समझ इतना स्ट्रांग है कि यही है सच। आप नहीं देखते पर सच यही है, जी। मतलब इसके बारे इसी को समझना है जी। ना। เพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีมั่นคงในสิ่งที่เป็นจริงมีจริง ไม่ใช่มั่นคงต่อความไม่จริงที่เป็นเรา और अधिधान पारमिता यही मतलब हुआ कि इसको फर्म कॉन्फिडेंस इसी के बारे है, सच के बारे है। वो नहीं कॉन्फिडेंस जो सच नहीं है, सच के से कॉन्फिडेंस है, सच पे कॉन्फिडेंस है। जी। जो सच नहीं उस पे नहीं। उस पे नहीं। ถ้าไม่รู้ว่าอะไรจริงเปลี่ยนไม่ได้จะมั่นคงในความจริงไหม अगर समझा कि जो सच है बदल नहीं सकता, कॉन्फिडेंस होगा ना। जी। เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัจจะบารมี มั่นคงต่อความจริงว่าไม่มีเราแน่นอน เพราะว่าเพียงเห็นเกิดแล้วก็ดับ ได้ยินเกิดแล้วก็ดับ ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลย और ये है मतलब सच्चा पारमी। दूसरा पारमिता सच्चा पारमिता, जो सच है, जो सच है उठा है भंग हो जाता है, हर दम उठ के भंग हो जाता है। हम कहीं भी नहीं है। हम कहीं पे नहीं। ค่ะตอนนี้จะมีคำถามให้คิดนะคะว่ามั่นคงต่อความจริงแค่ไหน अब अचानक से एक सवाल होगा ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना सख्त है, कितना है हमारा अंडरस्टैंडिंग। जी। ค่ะกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ इस वक्त पे आप बैठ रहे हैं ना, बैठे हैं ना। जी। อะไรจริง उस वक्त क्या सच है आपके हिसाब से कि आप बैठ रहे हैं, पर सच क्या है? बैठ रहे हैं ये सच है, मैं बैठ रहा हूँ सच नहीं है। ये दम था, उठा, मैं बैठा, ये सच है। लेकिन मैं अपना शब्द जहाँ गया वहाँ सच नहीं है। มีความจริงก็คือมีการเกิดของการนั่งแล้วก็ดับไปไม่มีเราที่นั่ง มีการนั่งจริงๆเลยค่ะ सच में बैठना है, बैठना एक सच है। बैठना एक सच है। बैठना एक सच है।จริงครับ จริงเลยค่ะนั่งเดี๋ยวนี้นะคะ นั่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหน इस वक्त पे जो हो रहा है क्या? जी। ये सच है। एक सच है। जी। อะไรจริงกำลังนั่ง तो อะไร क्या จริง है, क्या है ये सच? ये हमारे लिए भी क्या है जो हम कहते हैं बैठ रहा हूँ। जब मैं आ गया ना तो वो नहीं रहा था ना। नहीं बैठा, क्या है ये बैठा? ये धम है जो उठा और मैं हाँ, मतलब सब दम उठा और भंग हो जाता है। जी। पर अलग क्या है, ये जो आपने क्या बैठा देखना नहीं, सुनना नहीं, ये सब हर अलग अलग धम है। जी। तो ये बैठना क्या धम है, इसका नक्शा क्या है, इसका सच क्या है? मुझे दिखाई दे रहा था कि बैठे, ये सच है। เพราะเห็นว่านั่งอยู่ครับ ค่ะเห็นเลยค่ะ पर देखना है। नहीं। सोचना है। ค่ะความจริงทีละหนึ่งนะคะไม่มีเราแต่เคยคิดว่าเรานั่ง แต่ไม่มีเราแล้วมีอะไร यही है ना हमारा ज़िंदगी, हमारा एक्सपीरियंस से हम पूरा सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं कि हम हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम इस जगह पे है वगैरह वगैरह। पर सच एक टाइम में एक धम उठा है, वही जब भंग देखना होगा एक तब धम दूसरा है, आएगा। सोचना एक धम है, सुनना एक धम है, देखना एक है, तो बैठना क्या है? ये भी एक धम ही है। एक धम โอเคผมก็เลยถามต่อว่าก็เป็นอย่างนี้ความจริงเรามีความคิดเป็นรวมๆว่าเรานั่งอยู่ที่นี่ ค่ะ อยู่ที่ นั่นคือผิด ใช่ ค่ะ แล้วก็แต่จริงแล้วมีแต่เห็นมีแต่ได้ยินมีแต่ ค่ะ อะไรเลย เห็น แต่ ไม่ได้นั่งใช่ไหมคะ
देखना तो नहीं ना, बैठना ये नहीं। तो ได้ยินก็ไม่ได้นั่ง सुनना भी बैठना नहीं, सुनना भी बैठना नहीं। อะไรนั่ง तो क्या है ये बैठना? ये सच है कि बैठा। तो आप बोल रहे हैं जैसे देखना एक सच है, सुनना एक सच है, बैठा भी एक सच है। बैठा वो सच था। क्या सच? हट वो गया। था क्या? उस समय का जो धम उठा था क्या कि था? मैंने देखा बैठ रहे हैं, तो ये सच जैसे था। देखना आप कह सकते हैं ये देखना जो देखता है सामने आँख के, जी सुनना आवाज़ जो सुनता है, जी। बैठना क्या सच है? आप मैम बताएंगे हमें। पर आप मतलब आप ये समझते कि एक सच होगा, पर पूरा नहीं समझे कि जी। ये श्योर नहीं है कि एक सच है। अब थोड़ा डाउट आ गया ना जी मन में जी। कि सच है या नहीं। या नहीं। अच्छा ตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่า ค่ะ เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้นะคะต้องฟังและไตร่ตรอง ขณะนี้กำลังนั่งตรงที่นั่งนะมีอะไร तो अचानक कह रही है सुन के विचार करना चाहिए, अगर समझना है तो सुन के ध्यान से सुन के विचार करना चाहिए कि सच क्या है। ไม่ใช่ตรงเห็นไม่ใช่อะไรนะคะตรงนั่งนะมีอะไร तो अब अचानक पूछ रही है बैठने, अब बैठना आप बैठे हैं, बैठने के जगह पे आप जो यहाँ बैठे हैं वो क्या है? देखने के बारे में, सुनने के बारे में, बैठना उस जगह पे वो क्या है? क्या है जो है और आपको लगा कि हम बैठे हैं? ลึกซึ้งไหมคะ गहरा है ये? सुन के लगता है कि ये सब बहुत गहरा है। กำลัง गहरा นั่ง है। ก็หาไม่เจอ क्योंकि सोच सोच के भी नहीं पता लगता, कितना भी सोच के नहीं पता लगता, जी आंसर नहीं मिलता। जी। แต่ว่าไม่มีเราใช่ไหมคะ पर इतना समझ है कि हम नहीं है। हम नहीं, ये तो सच। มีแขนไหม अपना बाँ है ये बाँ बाँ है आपके पास जी। है कि नहीं सच में बाँ? ये हम सोच सकते हैं है लेकिन है नहीं। ครับคิดได้ถึงแขนแต่ คิด ว่า ค่ะคิดไม่ใช่แขน คิด तो मतलब उस वक्त सच सोच है, उस वक्त जब सोचते हैं कि बाँ है उस वक्त सच है सोच। जी। ถ้าไม่คิดไม่มีแขน अगर नहीं सोचे तो बाँ तो नहीं बात है। नहीं है। เพราะฉะนั้นกำลังนั่ง ถ้าไม่คิดว่านั่ง จะเข้าใจว่ามีนั่งไหม इसी तरह अगर सोचे कि हम बैठे हैं, पर अगर ना सोचे तो है तो नहीं। ค่ะ ใช่ ถ้าไม่คิดก็ยังมีขณะที่นั่งมีอะไร तो अगर ना सोचे भी कुछ है बैठने के टाइम पे, वो क्या है? เดี๋ยวนี้ทุกคนกำ इस ลัง वक्त นั่ง पे है। พระสัม कोई มา भी สัมพุทธ दे เจ้า सकते ตรัสไว้อย่างไร जवाब दे सकते है। जैसे आप हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब आवाज़ आता है उनको लगता है कि हम सुन रहे हैं। इसी तरह जब बैठे हैं सोचते हैं कि हम बैठे हैं, पर क्या है? जैसे उस वक्त पे आवाज़ सुनना, इस वक्त पे क्या है जो हमको आइडिया मिलता है कि बैठा है, खड़ा नहीं या सोए नहीं, क्या है वो? सोच है, पर सोचने के कारण क्या है? किस लिए, क्या था जो हमने सोचा कि इस बारे कि हम बैठे हैं, क्या था उससे पहले?เขาคิดไม่ได้ครับ ค่ะ มีใครจะตอบบ้างไหม ผม คะ ถามแล้ว ไม่มีเลยค่ะ ไม่มี ค่ะ ไม่มีอะไรเลย
แต่มีแข็งที่ตรงนั่งไหม और कुछ नहीं, पर ये है कि सख्त है, यहाँ हम बैठे हैं वहाँ सख्त लगता है ना, शक्ति है ना, हमको पता है हम बैठे हैं क्योंकि उस वहाँ पे एक्सपीरियंस, सख्त का एक्सपीरियंस जी है कि नहीं, जी वो है ना। जी हाँ, มีแข็งไหม ไม่แข็ง ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะ แต่เกิดแล้วค่ะทุกชาติจะมีเห็นสิ่งที่ปรากฏ จะมีได้ยินเสียง ขณะเสียงปรากฏอย่างอื่นต้องไม่มี นั่งก็ไม่มีแข็งก็ไม่มี ขณะที่เห็นอย่างอื่นก็ไม่มี มีได้กลิ่น มีลิ้มรสมีคิดนึก6 ทาง ไม่ว่าโลกไหน สิ่งที่ปรากฏมีเพียง6 ทาง เพราะฉะนั้นทางที่5นะคะกระทบสัมผัส เวลานั่งต้องมีการกระทบสัมผัส เพราะฉะนั้นมีแข็งแต่ไม่มีเรานั่ง तो हर जन्म में ऐसे ही है हमारा एक्सपीरियंस। ये सब 5 सेंस से और सोच, देखने के टाइम पे कुछ दिखाई दिया, हम इसलिए सोचा कि हम उस व्यक्ति को देखा जी। या हम है जो, तो सुनने के टाइम पे ऐसे सुनाई दिया। इसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, किसका आवाज़ है, जी और टेस्ट करने क्या खाना स्वाद है, के लिए, हाँ। सूंघना क्या सूंघना। स्मेल है। इसी तरह जब बॉडी सेंस में टच करते हैं, टच, हाँ। वो भी एक है जो एक्सपीरियंस है। होता है, वो एक सच है। जी और उसके बाद अलग अलग सोच होता है कि हम बैठे हैं या खड़े हो रहे हैं या जो भी है। खाया पिया सूंघा กำลังยืนมีเรายืนไหมคะ तो इसी तरह जब आप खड़े हुए हैं, जी हम हैं जो खड़े हैं, नहीं मैं खड़ा। ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นคงนะคะไม่มีเรา แต่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหนึ่ง มีเสียงปรากฏทางหู มีกลิ่นปรากฏทางจมูก มีรสปรากฏทางลิ้น มีสิ่งที่เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวกระทบเมื่อปรากฏที่กาย ไม่มีเรานั่งทั้งตัว तो कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ ये 5 द्वारा के एक्सपीरियंस है जी और सोच है। आँख से कुछ दिखाई देता है, जी कान से कुछ सुनाई दे देता रहा है, है, नाक से से कुछ कुछ स्मेल, स्माइल, से कुछ टेस्ट, टेस्ट और और टच बॉडी करके, से टच से एक हार्ड सॉफ्ट या हॉट कोल्ड जी। या प्रेशर, मोशन प्रेशर, जी, जी। बस เป็นความ जिंदगी में सिर्फ इतना ही है। जी เป็นความจริงไหม ये सच है कि नहीं? जी सच, बिल्कुल 100% सच। ค่ะต้องไม่ลืมนะคะ6 ทางเท่านั้น แต่มีมากนะคะ แต่ว่าปรากฏได้6 ทาง तो बहुत तरह का एक्सपीरियंस होता है, पर सब मिलके सिर्फ 6 रास्ता, 5 अच्छू। ये और मन। जी พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้หรือเปล่า और बुद्ध भगवान यही सिखाए ना, इसीलिए हम उनकी शरण में आए हैं। थंगलो मा मा माพึ่ง ค่ะ ไม่ใช่ใครคิดเองนะคะ ครับ แต่ฟัง เพราะก่อนฟังเป็นเรานั่งกำลังหายใจ เราหายใจหรือเปล่า तो अचानक ये क्या आपको मतलब पता लग गया थोड़ा समझ कि अभी थोड़ा खुद थोड़ा समझा खुद है। खुद कोई भी नहीं सोच सकता ये इस बारे, इसलिए आप बुद्ध भगवान के शरण में आए हैं जी सुनने के लिए, क्योंकि कैसे समझे कि सच में हम नहीं है। जी देखना, एकदम देखने से है। पहले देखना नहीं था, नहीं सिर्फ देखना उठा उठा और खत्म देखना और खत्म हो जाता खत्म। है। ऐसे सब ऐसे ही जी। होता है। ถ้าไม่ฟังธรรมะ เรานั่งแล้วก็มีลมหายใจ เรายืนแล้วก็มีลมหายใจ มีตัวตน แต่ว่าเวลาที่ฟังธรรมะไม่มีอะไรค่ะ แล้วหายใจเป็นอะไร तो अगर धम्म नहीं सुनना, जैसे आपने इससे पहले जवाब दिया कि
जन्म होना, आपने एक पॉइंट पे बोला कि जन्म होके सांस लेना, अगर ये धम नहीं सुना तो हम सोचेंगे कि हम है जो सांस लेते हैं, बैठ के सांस ले रहे हैं, उठ के सांस ले रहे हैं, लेट के ले रहे हैं, बस ये नहीं समझेंगे कि हम नहीं है जो सांस दे रहे हैं, सिर्फ अलग अलग धम्मा है, ये हम कभी नहीं सोचेंगे। हम कभी เพราะฉะนั้นหายใจเป็นอะไรคะ तो ये सांस लेना सच में क्या है? धम्मा है। ये तो तो क्या हर है? हर आंसर क्या? वही होगा, धम्मा वो तो करेक्ट होगा, जी। पर हम ये पूछ रहे हैं कि किस तरह का धम्मा है? सोच का है कि हम सांस ले रहे सांस हैं। नहीं, अभी जैसे बैठने के टाइम पे हमने बोला, इसलिए ये सोच है कि हम बैठ रहे हैं क्योंकि सख्त है। जी। तो इसी तरह जो जब हम सोचते हैं कि सांस है, उस वक्त पे क्या है सच, उसका सच क्या है? हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी प्रक्रिया कर रही है, जो क्रिया है टच है। टच ना, टच हो रहा है ना जी, एक जगह पे, एक जगह। ทางไหนคะ किस द्वार से? वो 5 द्वार से किस द्वार? नोज, नाक से। नहीं, नाक, नाक तो स्मेल होता है। हाँ, ये क्या है? टच, आपने बोला टच, नोज तो स्मेल ही है। टच बोला, टच किस से होता है? हाथ दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। हाँ, तो टच किस से? आप सिर्फ हाथ, या यहाँ बैठे भी टच हो रहा है? तो किस द्वार से? द्वार मतलब जो कमला स्पर्श हो रहा हृदय। है हाँ, वो किस द्वार से हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है? मन जैसे देखना तो आँख के द्वार से हो रहा है, सुनना कान से हो रहा है। जी। तो जब सांस लगता है कि सांस है उस, और आप अभी कहा कि टच, टच से। हाँ टच, कि किस द्वार है वो टच? टच द्वार, आप यही जवाब देंगे, शायद यही आप समझे, टच द्वार। जी। ก็คือทางटच, टच सच में मतलब हो गया चित, टच करना। हाँ। किस द्वार का मतलब बॉडी है कि नहीं? जी, जी। बॉडी सेंस, बॉडी से। हर जगह जी। बॉडी। जी। तो ये कह सकते हैं कि सांस जब होता है वो आपको पता लगता है बॉडी सेंस से, जी, यही ना? यही। क्योंकि इस जगह पे हो रहा है, जी। और वो स्मेल नहीं है, नहीं। सिर्फ कुछ हार्डनेस, सॉफ्टनेस, हीट को, कभी कभी गर्म ठंडा वगैरह, ऐसे ही होता है ना? जी। थंग का आएगा। ค่ะ เป็นเราหรือเปล่าคะ हम है जो सांस कर रहे हैं? नहीं। ไม่เป็นเราแล้วเป็นอะไร अगर हम नहीं है तो क्या है? हम नहीं है। हम नहीं है तो क्या है? ये सांस अगर हम नहीं है, सच में क्या है?ทั้งหมดมีกี่ทางคะ कितने द्वार हैं यहाँ एक्सपीरियंस हो सकता है पूरा? कितने द्वार अलग अलग? टोटल 6। टोटल में हाँ 6 ना। 6। तो ये सांस किस द्वार से है? आँख से नहीं, ये से नहीं, किस द्वार से? अभी आपने जवाब दिया टच। हाँ, बॉडी ना। जी। हाँ, ค่ะ มั่นคงไหมคะ तो ये समझना कि सिर्फ एक तरह का सच है, हम नहीं है, हम नहीं है एक तरीके का सच। और वो है जो सच बॉडी सेंस से हुआ। जी। ये समझते हैं ना? जी। सब ये मतलब आप अंडरस्टैंडिंग फर्म है ना? बदलेंगे नहीं ना? नहीं। इसके बाद नहीं सोचेंगे कि हम है जो सांस कर रहे हैं।
यही तो शरण में आना हुआ, जब सब आ जाएगा तो हम वही हो जाएंगे। เขาบอกมั่นคงไหมเขาบอกเข้าใจไม่ใช่ว่าเสร็จสนทนาแล้วกลับไปก็จะคิดว่าเราเป็นคนหายใจใช่ไหมเขาบอกก็นั่นแหละมันก็ต้องกลับไป จะต้องเข้าใจจริง ๆ ทั้งหมดนะคะ เวลานอนหลับอะไรมีขณะนั้นหรือเปล่ากำลังหลับสนิทมีอะไรหรือเปล่า तो आचार्य कह रही है इसलिए हमको सबको धम सुनना है और कोशिश करना समझना है। तो अब सवाल आपसे ये है सोने के टाइम पे उस वक्त पे क्या है कुछ सोने के टाइम पे जी क्या है? सोचना सोने के टाइम पे मतलब पूरा नींद पूरा मतलब डीप स्लीप पे नहीं समझ नहीं आया आप। सोने के टाइम पे क्या है? जब आप सोते हैं तो उस वक्त क्या है? जब सो रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। เวลานอนไม่มีอะไรครับอาจารย์ ค่ะมีเราไหม हम है नहीं แล้วยังไม่ตายใช่ไหม पर मरे नहीं नहीं मरे नहीं लेकिन हम नहीं हैं। हाँ पर मतलब कुछ ना कुछ होगा जी ครับยังไม่ตายก็ ยัง ไม่มีเรา ไม่มีเรา पर क्या है मतलब कुछ है जरूर कुछ है क्योंकि मरे नहीं हाँ वो क्या है? जो हम बताइए। नहीं पता नहीं हाँ मैं साहब ค่ะถูกต้อง ठीक है नहीं पता नहीं पता मतलब नहीं पता हाँ नहीं पता। ठीक है ต้อง ต้องมีธาตุรู้นะคะ एक वो सच होना चाहिए ना जो उठ के एक्सपीरियंस कर रहे हैं เพราะยังไม่ जी ตาย क्योंकि जीवित है हाँ मतलब है ना जी एक एक्सपीरियंस उस वक्त पे जी ครับ เพราะยังไม่ตาย क्योंकि मरे नहीं मरा नहीं नहीं। แต่ถ้าตายแล้วมีธาตุรู้ไหม पर जब अगर मरे तो फिर उठेंगे नहीं। ये एक्सपीरियंस होगा कुछ एक्सपीरियंस करने ये सच होगा कि नहीं नहीं होगा ना แล้วตอนเกิดมีอะไร और जन्म के टाइम में क्या सच है उस वक्त पे जन्म के टाइम पे क्या सच है?เกิดกับนอนหลับสนิทเหมือนกันไหมคะ जन्म होना और सोना एक तरह का एक्सपीरियंस है तो एक ही तरीके का लेकिन है नहीं। एक तरह का ना क्यों आप เขาบอกว่าเป็นผมถามอย่างนี้ว่าเกิดกับตายเป็นสิ่งที่เหมือนกันไหมเกิดกับหลับนี่เป็น experience เหมือนกันไหมแบบเดียวกันไหมเขาบอกเป็น เพราะฉะนั้นเป็นอะไร और क्या है मतलब जन्म और सोने के टाइम पे वो उसका सच क्या है? जन्म के समय हम आभास करते हैं और मरने के बाद कुछ कर नहीं सकते। नहीं जन्म और सोने के टाइम ये सवाल ये था जन्म और सोने के टाइम पे कोई रिलेशनशिप है ये दोनों है ना सच में है ना जन्म एक सच है जी और सोने के टाइम पे भी सच है जी और आपने अभी ये समझ लिया कि उस वक्त पे सोने के टाइम पे वो सच है जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ है एक्सपीरियंस मतलब एक कंपेयर किया मरने के टाइम पे वो नहीं है वो क्या नहीं नहीं है उस वक्त पे जब सोने के टाइम पे कुछ है जो मरने के टाइम पे नहीं है और वो है एक तरह का एक्सपीरियंस फिर आचार्य ने आपसे पूछा कि जन्म के टाइम पे वो भी एक सच है आपने बोला एक सच है और हमने आपसे पूछा कि ये जन्म और जब सोने के टाइम पे इस पे कोई कनेक्शन है कोई
रिलेशन है, एक तरह का एक्सपीरियंस है कि नहीं? आपने बोला है पर पता नहीं क्या है, जी जानते नहीं क्या है। तो अब दोबारा आपसे पूछा, आपके हिसाब पे ये क्या है जो है, जन्म के टाइम पे क्या है और सोने के टाइम पे क्या है सच? नहीं मालूम, बताइए। ไม่ทราบว่าตอนเกิดแล้วก็ตอนที่นอนหลับ ค่ะ ตอนนั้นควา ค ม น จริงคืออะไร คนเกิดกับต้นไม้เกิดเหมือนกันไหมคะ इंसान का जन्म और पेड़ का जन्म एक ही है, तरह का जन्म है। जब हम कहते हैं इसका एक पेड़ का शुरुआत हुआ जी ना, और इंसान का ये एक तरह का जन्म है, नहीं नहीं मन करता। ค่ะไม่เหมือนกัน और क्यों आप क्यों ये कहते हैं कि एक जैसा नहीं है, उसका कारण क्या है? इंसान के जन्म होने के बाद पालन पोषण स्वयं को करना पड़ता है। प्रकृति का जो जन्म होता है उसका कोई नहीं करता। वही सिर्फ यही ये फ़र्क है पेड़ और इंसान का, जानवर और पेड़ का। कोई भी, इतने लोग बैठे इसका जवाब दे सकते हैं। क्या इंसान का, पेड़ का, जानवर का जन्म एक है? पेड़ और इंसान का फ़र्क क्या है? संजीत जी। इंसान का जो जन्म है, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं दूसरा जन्म ग्रहण कर लेती है। लेकिन पेड़ है तो जब तक उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो उसको तब तक वो जन्म नहीं पेड़ ले सकता है। मैम ही सेइंग เขาตอบว่าความต่างระหว่างต้นไม้กับมนุษย์ก็คือว่ามนุษย์หลังจากชุติแล้วเกิดทันที แต่ต้นไม้หลังจากตายแล้วจนกว่าหาสถานที่เกิดใหม่ไม่ได้ก็จะไม่เกิดครับอาจารย์ เขาบอกคำต่างกันเพราะคำถามเราถามว่าต่างกันยังไงครับเขานั่นคือคำตอบเขาว่าต่างกันตรงนี้ว่าต้นไม้ต้นไม้เวลาตายหาที่จะไม่เกิดจนกว่าหาที่เกิดได้ แต่ดิฉันยังบอกว่านั่นไม่ใช่คำถาม अच्छा आचार्य सच में ये कह रही है ये सवाल नहीं था सवाल ये था सवाल था เพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าเข้าใจหรือเปล่านะคะ ต้องรู้ว่าถามอะไร ต้องเข้าใจคำถามก่อนจึงจะตอบได้ हाँ हम सच में ये है कि सवाल प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं उसका थोड़ा चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, पर ये आदत भी है हम सब का कि सवाल हम ध्यान से नहीं सुनते ทุกคำถามทุกคำตอบต้องคิดคำถามก่อน और जवाब देने से पहले सोचना चाहिए कि सवाल क्या था รู้ไหมคะใครพูดอย่างนี้ और ये किसने बोला พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส बुद्ध भगवान खुद ऐसे बोला ค่ะการที่จะสนทนาธรรมต้องฟังเมื่อมีคำถาม เข้าใจคำถามพิจารณาไตรตรองว่าคำตอบคืออะไรแล้วจึงตอบ นั่นคือการตอบคำถาม और यही कहा कि धम्म चर्चा करने के टाइम पे सवाल को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना सवाल क्या है और जवाब उस हिसाब से करना พระม अपना หาก सोच รุ नहीं ณานะคะพระปัญญาคุณ รู้ว่าคนส่วนใหญ่ อยากจะตอบคิดถึงคำตอบ แต่ไม่ฟังคำถามให้เข้าใจคำถามก่อน हमारा सबका यही एक्सपीरियंस होगा अगर देखा कि हमारा आदत यह है कि सवाल से पहले हमारे पास जवाब है और हम चाहते हैं जवाब देना ถ้ามิฉะนั้นนะคะจะไม่เห็นความลึกซึ้งของธรรมะ
अगर ये नहीं समझे तो धम्म नहीं समझेंगे। เพียงฟังแล้วตอบไม่ลึกซึ้ง सिर्फ सवाल सुन के तुरंत जल्द करना, जवाब देना, ये तरीका नहीं है। ये रिफ्लेक्ट नहीं करता धम्म का सच, धम्म का गहरा, धम्म का जटिल, धम्म का कठिन, उसका रिफ्लेक्ट नहीं करता। ถามอีกครั้งหนึ่ง ต้นไม้เกิดกับคนเกิด สัตว์เกิดนกเกิดต่างกันหรือเหมือนกัน तो अब ध्यान से सुनना। पेड़ का जन्म और इंसान और पक्षी का जन्म एक है या अलग है? एक तरह का है, सेम है या अलग है? सेम है। ไม่มีไมโครโฟน माइक्रोफोन मैम से एक सवाल है मेरा। नहीं नहीं हाँ। सर एक कुदरत के तौर पर जो है, जो हम लोगों से सच तक में भी सभी को परिनिर्वाण के लिए जाना पड़ा, तो हम जहाँ तक पहुँचे हैं उस सच तक, उस सच के तहत जहाँ तक हम लोगों को जानकारियाँ हैं, उसी से मतलब मैं अपना लॉजिकल ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो वर्थ है वो एक प्रकृति के तौर पर दी हुई व्यवस्था से है, वो चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे हम हो। पर हम यहाँ है कोशिश करना, समझना, तो अपना सोच थोड़ा अलग रखे और हम कोशिश करें समझना कि जो आपने सोचा और जवाब दिया कि पेड़ का जन्म और इंसान और पक्षी का जन्म एक ही सेम है, वो सही है कि नहीं ना? आपका ये सोचते हैं ना कि सही है आपके समझ से? अब सर आगे तो बताइए, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। हाँ नहीं जवाब यही ना, सेम है। हाँ मतलब कुदरत के तौर पर जैसे कि हम लोग वर्थ हो रहे हैं, जो दिखता है लोगों को, जितना समझ पाता है आम आदमी उसी तरीके से, लेकिन वैज्ञानिकता के तौर पर उसको और बहुत विश्लेषित और गहन अध्ययन ही किया गया है, तो थोड़ा सा वो आपको बताना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है, हम धीरे धीरे से हम कोशिश करें एक शब्द को समझना। हम समझेंगे कि पेड़ क्या है जी, पुरुष क्या है, जन्म क्या है, ये सब आके समझेंगे धीरे धीरे से। तो अब आपके समझ के हिसाब से आप जितना भी समझ रहे हैं, आपका ये समझ है कि जब कहते हैं पेड़ का जन्म हुआ और इंसान का जन्म हुआ, ये दोनों एक तरह का जन्म ही है। हाँ सर, जन्म ही मानेंगे। जन्म ही मानेंगे, एक तरह का जन्म, मतलब एक मतलब हो गया। इंसान जन्म हो या पेड़ जन्म हो, एक ही है। नहीं, उसका रूप बदल सकता है, वैसे जन्म तो है। हाँ जन्म हाँ, है ना जी। सेम जन्म। हाँ, मतलब आपका जन्म हमारे जन्म सेम है, वो तो हम आर्ग्यू नहीं करेंगे। जी सर। पर आप कह रहे हैं आपका जन्म और पेड़ का जन्म भी सेम है। सेम ही कहेंगे सर से। क्या कहेंगे? वो सेम ही है। सेम ही है। इनका कहना है एक जैसी व्यवस्था के तहत ही हाँ, जन्म वो है। है। कि जो संजीत क्या बोल रहे हैं? प्रकृति की एक जो व्यवस्था है उस रूप में वो कह रहे हैं कि वो सेम ही जन्म है। सर मतलब जन्म का मतलब वही हुआ जैसे हमारा जन्म ก็คือสรุปแล้วถ้าเราพูดถึงการเกิดของต้นไม้กับการเกิดของมนุษย์เราก็พูดถึงสิ่งเดียวกันปรากฏการณ์เดียวกันสรุปเขาก็คือเหมือนกันเกิดต้นไม้เกิดเกิดมนุษย์เกิดคือเหมือนกัน เขาเป็นต้นไม้หรือเปล่าเขาเนี่ย आप पेड़ है आप पेड़ है कि नहीं पेड़ नॉमिनेशन करने में तो हम लोगों को भिन्न भिन्न जो है मतलब पहचान की गई है, पर पेड़ का रूप हो ही सकते हैं। पर आप पेड़ नहीं है। पेड़ है नहीं, लेकिन नहीं ये है फर्क ना? है सर। जी हाँ, सर, ये इस बताना वक्त पेड़ होगा। नहीं है। जी ครับไม่ได้เป็นต้นไม้ครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นต่างกันหรือเหมือนกัน तो कुछ फर्क है ना? फर्क है जी। हाँ। वही तो जानना है। हाँ तो मतलब ये कह सकते हो कि पेड़ का जन्म और आपका जन्म फर्क है। कुछ कह सकते हैं, लेकिन सर उसको डीपली बताना पड़ेगा आपको। ครับก็คือต่างกันในระดับหนึ่ง
คืออย่างก่อนหน้านี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าพูดถึงการเกิดของเขากับการเกิดของผมก็คือเป็นประเภทเดียวกัน แต่ว่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นว่าเขากับต้นไม้ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่การเกิดเหมือนกัน คุณคำพันธ์ มีคนขึ้นไปไม่มีใครคอยดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะต้นไม้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่คนไม่ใช่ต้นไม้เพราะรู้ ये आप समझ सकते हैं ना कि पेड़ को कुछ नहीं पता लगता इंसान को पता लगता है जी เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะละเอียดอย่างยิ่งทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตาย और बुद्ध भगवान ने धम्म हमको सिखाया समझने सब सच को सही समझने के लिए सिखाया जी ถ้าไม่มีสภาพที่สามารถจะรู้อะไรนะคะอะไรก็ไม่ปรากฏ अगर वो सच नहीं है जो उठ के कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है जान रहा है तो कुछ भी नहीं होगा जानने के लिए कुछ भी नहीं जानेंगे कुछ बात भी नहीं कर सकते किसी की बात भी नहीं कर सकते जी เพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าขณะที่เกิดขณะที่หลับสนิทขณะที่ตายไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนแต่ละหนึ่ง और ये बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया बताया कि जन्म के टाइम पे और सोने के टाइम पे और मरने के टाइम पे उस वक्त पे देखना सुनना सोचना कुछ भी नहीं है पर एक सच है जो उठ के कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ जान रहा है पर देखना नहीं सुनना नहीं ये 5 द्वार से कुछ नहीं हो रहा 6 सोचना भी नहीं हो रहा उस वक्त पे जी เพราะฉะนั้นนะคะธาตุรู้ไม่มีใครทำให้เกิดทุกอย่างไม่มีใครทำให้เกิดแต่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด और ये जो सच जो उठ के कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोई भी नहीं बना सकता पर उठता है जब कंडीशंस है जब कंडीशंस राइट है उठता है और अपना काम करता है เริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกโลกทุกแห่ง और ये हम समझ सकते हैं कि बुद्ध भगवान ने सब कुछ जाना जो भी कहीं पे ये पूरा यूनिवर्स में जो भी कहीं भी किस जन्म में भी किस रूप में भी जन्म हो हर सच उन्होंने पूरा जान लिया เพราะฉะนั้นต้องฟังทุกคำนะคะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจ इसलिए हमारे ड्यूटी ये है कि सुनने के टाइम पे हर शब्द को ध्यान से सुन के कोशिश करना समझना सही समझना गलत ना समझे ค่ะนกไก่ได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความหมายของเสียงได้ चिड़िया और दूसरे पंछी सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते कि क्या आवाज़ है सिर्फ सुन सकते हैं ना है कि नहीं แต่มนุษย์ต่างกับสัตว์ เพราะฉะนั้นสามารถที่จะคิดไตร่ตรองและเข้าใจความจริงได้ पर हम इंसान अलग है जानवर से हम सुन के सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि क्या शब्द हम सुन रहे हैं क्या आवाज़ सुन रहा है क्या उसका हर अलग अलग आवाज़ का क्या मीनिंग है เพราะฉะนั้น हम ทุก समझ सकते हैं คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแต่ต้องอดทนแล้วก็รู้ความลึกซึ้งแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้น और अगर हम सचमुच में सच जानना चाहते हैं ये समझो कि हर शब्द बुद्ध भगवान के उस पे पॉइंट करता है समझ
जो हम कर सकते हैं समझना, जो हमारे ज़िंदगी में हर वक्त हो रहा है उसको समझना। बुद्ध भगवान ने सिखाया हमको समझने के लिए है रास्ता, उन्होंने सिखाया और बोला का उसका सच क्या है। ค่ะพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้สนทนาที่จะเข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่มีตั้งแต่ขณะเกิดจนตายทุกชาติ कल भी एक मौका मिलेगा ये सुनना सच के बारे जो हर वक्त पे है, हमारी ज़िंदगी सच ही है, हर वक्त सच है। कल मौका मिलेगा ये सब सुनने को चांस मिलेगा और समझने को चांस मिलेगा เพื่อเข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏ और हम यहाँ है सुनने के लिए। एक उसका पॉइंट है कि हम समझे कि ये सब कितना सच कितना गहरा है, जो अगर नहीं सुना सोचें भी नहीं, बिल्कुल समझेंगे नहीं, सिर्फ ये नहीं समझने, गलत समझेंगे, अलग अलग सोचेंगे। जैसे सोचेंगे कि पेड़ का फीलिंग होता है, कई लोग सोचते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सच नहीं समझते। แม่พระเชตวันก็ยังคงอยู่ที่นี่ต่อไป แต่ว่าจะมีโอกาสได้มาฟังธรรมะสนทนาธรรมะที่ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ผู้ที่ไปเฝ้าพระองค์ जेतवना तो है उस दिन से 2000 साल पहले और है इस वक्त, और हमको चांस मिले उसी तरह जो उस टाइम पे लोग जो चांस मिला सच को सुनने के लिए, और यहाँ जगह होगा और चांस होगा आपके लिए ये सब बातों सुनना। ถ้าไม่มีเหตุให้เกิดทุกอย่างก็เกิดไม่ได้เลย पर फिर ये भी सब कंडीशन से है ना, अगर कंडीशंस नहीं है तो नहीं होगा, पर जब कंडीशंस होगा कोई भी नहीं रोक सकता। แม้แต่การที่มีโอกาสจะได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วนานแสนนานก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัย แต่ก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าสามารถจะมีเหตุปัจจัยที่จะให้ได้มาณที่นี้ที่จะระลึกถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้แต่ละคนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้เข้าใจธรรมะขึ้น जो यहाँ हम है सब कंडीशंस की बात है। आपको मौका मिला अपना अपना कंडीशन से आप आए, बहुत लोगों को चांस नहीं है, बहुत सारे लोग शायद सोचे कि एक दिन चाहते हैं सुनना पर कंडीशंस नहीं है, ये सब कंडीशंस की बात है। มีความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเท่าไหร่ก็มีความนอบน้อมเคารพอย่างยิ่งในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณให้เราได้ฟัง जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग हो उतना हम ये अप्रिशिएट करेंगे बुद्ध भगवान के सब गुण, उनका ज्ञान, उनका करुणा, उनका प्योरिटी, हम ये सब समझेंगे कि मतलब क्या है वो। เพราะฉะนั้นโอกาสสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะได้ประทักษิณเป็นการแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งในธรรมะที่ทำให้เราได้มีความเห็นถูก आज टाइम हो गया तो आज हमको ये भी मौका मिल रहा है आज कि हम can you explain this what we are going to do after this? अब हम लोग का ये प्रोग्राम समाप्त हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद वहाँ पे जो कैंडल रखी हुई थी, जितने लोग लखनऊ से आए हैं वो सारी एक एक कैंडल लेंगे और भगवान बुद्ध के रिस्पेक्ट में वहाँ पे वापस कैंडल रखेंगे ले आके, और नमन करते हुए हम लोग आगे की यात्रा को प्रस्थान करेंगे। और पॉइंट अचानक का ये है कि हम धम्म सुनने के बाद हमको थोड़ा और समझ आ रहा है कि बुद्ध भगवान के गुण, और ये चांस मिल रहे हैं रिस्पेक्ट शो करने, तो ये होगा इसके बाद। ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่มีโอกาสได้เข้าใจในพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิหารเชตวันแม้ว่าจะเป็นที่ที่พระองค์ได้ประทับและก็ทรงแสดงพระธรรมนาน19พรรษาก็จะไม่มีความหมายใดๆเลยทั้งสิ้น ये इतना आप समझेंगे कि अगर
आए इस जगह पे जो रहा 2500 साल के लिए और रहेगा, अगर आए पर बेसमझ से आए कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नहीं। पर जैसे आज थोड़ा चांस मिला समझने, मतलब आप यहाँ हैं, थोड़ा मीनिंगफुल हुआ आप यहाँ आने का और अपना रिस्पेक्ट शो करने का। จะเห็นพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจเท่านั้นค่ะ जैसे बुद्ध भगवान खुद अब कहा कि सिर्फ हमारे पीछे जाना मतलब नहीं हुआ कि आप हमको देखा, हमको देखे उस वक्त जब आप समझेंगे हमारा धर्म। ค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะได้ร่วมประทักษิณระลึกถึงพระคุณที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เข้าใจความจริงซึ่งแม้ว่าจะมากน้อยเพียงไรก็ตามนะคะก็จะปลูกฝังปัญญาที่จะให้เจริญงอกงามด้วยความมั่นคงที่เป็นอธิฐานบารมีในสัจจะบารมีในวิริยะบารมีขันติบารมีเพื่อละคลายกิเลสเป็นเนกขมะบารมี तो अब हम वही करेंगे जो कंडीशन बनेगा अपना पहले रिस्पेक्ट शो करने और अपना अलग अलग गुण अपना अलग अलग परमिता को बढ़ाने, जैसे सच्चा परमिता, अधिष्ठान परमिता, विरिया परमिता, ये सब जो गुण मदद करते हैं रास्ते पे जाने पे, सच के रास्ते पे जाने पे। ये चांस है हमको आज को मिल रहा है इस सब को बढ़ाने के लिए।